Namaste, everyone. Uh, I would like to say thank you for allowing me to speak something on International Vegetarian Association here. First of all, I would like to, say something for Dr. Chandora. I mean, I'm not a person for international level. I'm just a very small person, and Acharya Ashiji just, pushed me a little bit on, if I can move in, propagate the message of vegetarianism to the world. So I'm just trying to do something for that. That's all I'm doing. So I'll just start, with the presentation. It's not, it's just a formed last year in the US. It was actually formed in Mauritius in 2011 by inspiration of Acharya Ashish ji. He's the only person who inspired me actually to, move into this specific thing. The goal of our vegetarian organization is, it has actually 5 major goals. One is to educate humans about the vegetarianism. The other one is, I don't know how many people knows about genetically modified organism. I mean, genetically modified food, because this is something that जो भारत जो मनुष्यता के ऊपर एक तरह का आक्रमण है कि जिसमें हम जानते भी नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं और हम उसको खा लेते हैं, एंड देन हमारे को लगता है कि मतलब हम सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन 80% ऑफ अस विल हैव अ कैंसर in that, just because of this genetically modified thing. The other thing is, saving the world with the, from the hungerness. There are a lot of people, those live without food, and just because of few of us wanted to eat meat, or we love eating fleshes and hamburgers and this and that, we are allowing many of other people to live without food. So that's what we need to, we're just trying to spread, okay, this is what happens just because of we are not, focusing on the vegetarianism. And the thing is, we are, how non-vegetarians is, creating problems for the global, for the global warming, because it's produced so much of methane gas, so much of greenhouse gases, and preserving the non-veg food, it makes all environment so polluted that for us and for all other living beings, it becomes difficult to be on the going forward. I'm not going to present much here. I'm just, I just wanted to share the idea that we have just started, and I just wanted, if anyone has any doubts, any concerns, they can talk to me or the team members that I will show you lately in the presentation, after this presentation. Before that, I just wanted to ask everyone, अगर आप बाज़ार में जा रहे हैं और रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में पड़ा हुआ आपको कोई जानवर मरा हुआ मिलता है, तो क्या कभी किसी व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि उसको टेम्पटेशन फील होती है कि मैं उसको जाके खा लूँ? क्या ऐसा कोई होता है? मैं मानता हूँ कि ऐसा हम में से कोई भी ऐसा नहीं है. अगर हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि हम कार्निवोरस नहीं हैं, यानी कि हम मीट ईटर्स नहीं हैं. और एक स्टडी अभी पीछे हुई थी, तो उसमें बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने बड़ा ही क्लियरली बताया कि all human beings are herbivorous, that is, we are not meat eaters. अब उसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा उन्होंने कंपैरिजन स्टडी दिया है कि एक कार्निवोरस और एक हार्बिवोरस के अंदर, यानी कि जो मीट ईटर्स हैं और एक नॉन मीट ईटर्स हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और ह्यूमन जो है वो किस ओर जाके बैठता है.
तो उन्होंने कई ऑप्शंस कई बताए हैं इसमें कि जैसे मीट ईटर्स के पास काव्स होते हैं, हॉर्बीवोरस डजंट हैव द काव्स। सिमिलरली जो मीट ईटर्स हैं उनको उनको पसीना नहीं आता है, और जो हार्बीवोरस है उनको पसीना आता है। इसी तरह से जो मीट ईटर है उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, बट हार्बीवोरस के जो दांत है वो शार्प नहीं होते, उनको वो यूज़ करना पड़ता है चबाना के लिए। इसी तरह से उनका जो इंटेस्टाइन है, जो बॉडी जो हजम करने का जो उनका मैकेनिज्म है इंटरनल, वो बहुत क्लीन होता है, मतलब उसमें ज़्यादा उसमें इंटेस्टाइन नहीं होते कि उसको हजम करने में उनको दिक्कत आए। जबकि हार्बीवोरस जितने भी हैं वो सबको उनको हजम करने में इट हैज़ टू गो ए लॉन्ग प्रोसेस। मैं एक ये छोटा सा पिक्चर दिखाना चाहूँगा। इसमें दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड it says that it's a herbivorous intestine, and on the right side you'll see the carnivorous intestine. So you can see that how they are just they have very clean intestine, and उनको जो डाइजेस्ट करने के लिए उनको एक उनको सिर्फ जो फॉर द डाइजेशन, जो कार्निवोरस के डाइजेशन है वो हाइड्रोलिक एसिड की वजह से होता है, लेकिन जो ह्यूमंस और जो हार्बीवोरस एनिमल्स हैं उनका जो डाइजेशन है उसमें हाइड्रोलिक एसिड इट्स इन वेरी नॉमिनल, इट्स वेरी लो एज कम्पेयर टू द कार्निवोरस एनिमल्स। तो हम लोग जो हैं वो सारे के सारे हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हम हार्बीवोरस की तरफ बैठ जाते हैं, ना कि हम कार्निवोरस की तरफ जाते हैं। तो जो बॉडी की हमारी जो संरचना ईश्वर ने हमारे को जो बनाया है वो हमारे को हार्बीवोरस के लिए बनाया है। हमारी बॉडी इस लिए बनी ही नहीं है कि हम उसको जो कि हम मीट को और जो फ्लैश है उसको हम हजम कर सकें। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमारे को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये एक थोड़ा सा एक कंपैरिजन है जिसमें थोड़ा सा बताया है कि कैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, फास्फोरस और कैलोरीज जो हैं वो वेजिटेरियन फूड के अंदर ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन वेजिटेरियन फूड्स। दिस इज़ अ लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपैरिजन ऑफ दैट एज वेल। एक छोटी सी बात कहते हैं कि भाई अगर आप एक व्यक्ति अगर नॉनवेज खाना छोड़ भी देगा तो क्या हो जाएगा। तो अभी पीछे एक चर्चा चली तो एक व्यक्ति ने बताया कि एक व्यक्ति यदि नॉनवेज खाना 1 साल के लिए छोड़ देगा तो वो 250 जानवरों को मरने से बचा सकता है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि हर व्यक्ति के लिए कितना इम्पैक्ट इस चीज़ के ऊपर होता है। आप जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही हमारे को फल भविष्य में ईश्वर देता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 1 लाख किसी को गाली दे लीजिए और एक जानवर को मार लीजिए तो भी जो जानवर को जिसने मारा है उसके कर्म ज़्यादा खराब हैं बजाय कि आपने 1 लाख गाली किसी को दे ली। तो इस चीज़ के लिए हम अगर विचार करें तो हम उसके लिए हम थोड़ा सा इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। मनुस्मृति भी कहती है कि जो व्यक्ति चाहे वो मारने वाला है, मारने की आज्ञा देने वाला है, पशु को बेचने वाला है, उसको मांस को खरीदने वाला है, उसको खाने वाला है, वो सभी के सभी हत्यारे हैं। तो निश्चित रूप से उसको इस चीज़ को भी हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। वेद भी हमारे को जो है इसके बारे में बोलता है कि हमारे को इसको नहीं करना चाहिए। ये एक छोटा सा एक वीडियो है जो एक छोटी सी बच्ची कुछ कहना चाह रही है। मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे इसको। So, a lot of people ask me why my 6.5-year-old daughter has chosen to become a vegetarian. So I figured I would make a little video telling them why. Why don't you tell me? Because, I just like animals so much, and it's really sad that animals have to die so people can eat and have food. So I decided to not eat animals and
just eat vegetables, and vegetables are really healthy for you. What other things can you eat instead of animals? Peaches and apples and lots of fruit and vegetables. Beans. Beans. Yeah. Now, is there anybody else in your family that's a vegetarian? No. Am I forcing you to be a vegetarian? No. Do people kind of laugh at you when you tell them that you're a vegetarian? No. That's good. What other Kitty, get down. Not at the table. We like them so much, we let them sit at the table when we eat our dinner. What other vegetarians are in your life? Who in your life is a vegetarian? Because it's not your family, so who? My daddy. No, Daddy's not a vegetarian, silly boy. My best friend at school, Ellie H. Yeah. She's trying to be a vegetarian because she says she lives on a farm. Mhm. So she doesn't eat them, but when they're babies, they don't do this, and it's really sad what they do. What When they grow up, they take their gun and they shoot the big ones, and they use that for Thanksgiving Oh. or food. And does that make her sad? Yes. Oh. So her family are big time meat eaters then. Yeah. Guy. And then Kyla says she's trying to be a vegetarian. Mhm. Did you know that your friend Emma's mom is a vegetarian? I forgot to say that. Yeah, she doesn't eat meat. Oh, and Emma's brother Max is a vegetarian. I think. No, I think he eats meat. He's okay with meat. It was Zach that was a vegetarian for a while, but I think he's chosen to try meat again. So, has it been challenging? Has it been difficult for you to be a 6-year-old vegetarian? No? I know. Is it hard to find things to eat every day? You kind of have to be creative, huh? Yeah. Like, what are you having for dinner tonight? Carrots and apples and this kind of bread. This bread that's full of stuff that Grandma made. Please do not bang on the table with your fork, sir. कहने का अभिप्राय यह है कि अगर 6 साल की छोटी बच्ची को अगर खाने के लिए नॉनवेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम लोग तो अच्छे बड़े हैं और समझदार हैं, तो हम लोगों के भी नेचर के साथ खेलने की आवश्यकता नहीं है। तो इतनी सी बात के साथ मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ कि ये हमारा एक फेसबुक पेज है जिस पे हम कोशिश करते हैं इस वर्ड को स्प्रेड करने के लिए। अगर आप कोई भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो इस फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं, या फिर ये कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जिस पे आप लोग बात कर सकते हैं, जिसमें आप मेरे को बात कर सकते हैं, डॉक्टर अरोड़ा बैठी हैं, डॉक्टर मिसेस अरोड़ा बैठी हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ईशा गुलाटी जी यहाँ पे ह्यूस्टन में हैं, वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। ऐसे ही अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग कॉन्टैक्ट्स हैं। कुछ पैम्फलेट्स मेरे पास हैं जो बाहर रखे हैं, अगर कोई उनको लेना चाहता है तो आप प्लीज़ मेरे पास संपर्क कर सकते हैं, और मेंबर कोई बनना चाहते हैं और इसको स्प्रेड करना चाहते हैं तो मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आप साथ मिलकर के इस बीड़े को उठाएंगे तो निश्चित रूप से हम विश्व को एक नई क्रांति की तरफ बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।